morning to all the participants present for the webinar. I, Dr. Kalpana Pawar, convener of this webinar, welcome you all on behalf of Sri R.R. Lahoti Science College, Morshi. As we all know that the whole globe is fighting against the COVID-19 pandemic and its very worst condition in our country also, due to which government has declared lockdown or series of lockdowns from time to time, and we have to follow the instructions. But during this period we should not stop our work. We should continue our work of teaching, as well as we should continue the research work. Now, while doing the research, we come across some difficulties, such as where to publish our research papers. So whenever we would like to publish our research papers in the renowned international journals, we find that they ask to submit the papers in latex. So that time we come across the difficulty that what is the latex and how do we use latex to write the research papers. This latex is useful not only in writing the research papers, but it's also very helpful in writing books also. Before we start with the webinar, or before we start with the lecture of the webinar, I would like to request our Honorable Principal Dr. G.R. Tadas sir for the inaugural speech. So may I request our Honorable Principal Sir Dr. G.R. Tadas sir for the inaugural speech. Thank you, sir. At the outset, I pay my humble homage to the great visionary and educationalist Dr. Panjabrao Deshmukh, the founder president of Sri Shivaji Education Society Amravati. Good morning to one and all present for the webinars on Learn Latex and Lead the Latest. I welcome you all on behalf of Sri R.R. Lahoti Science College, Morshi. As we all know that whole world is fighting against coronavirus, and it's our moral responsibility to follow the instruction given by the government from time to time for our safety. I hope that you all are home and safety. But during this lockdown period, our students should lose their hopes, and it's our social responsibility to motivate and support them to strive for their bright future. Thank you, Principal Sir, for the inaugural speech. Now it's a time to introduce the speaker of today's webinar, Dr. Rishi Kumar Agrawal Sir. Dr. Rishi Kumar Agrawal Sir is the head of the department and associate professor of mathematics, Hislop College, Nagpur. He completed his MSc in mathematics in the year 1996. He stood third merit in the Nagpur University, Nagpur. He cleared NET JRF exam in mathematical sciences in the year 1996 at first attempt. He is the one who passed NET JRF at that time. Sir is the role model for all the mathematics students because he has keen interest in organizing various activities for the students, such as quiz, that is intercollegiate mathematics quiz, then mathematics seminars, contest for the students, lecture series for the students. He is always trying to popularize mathematics by organizing various workshops
To his credit, he has conducted almost 200 workshops on Ganit Darshan, which is the innovative way of teaching and learning introduced by Dr. Rishi Kumar Agrawal sir. And he is famous for his new technique of teaching, which is known as Ganit Darshan. He completed his PhD in the year 2018. He has been awarded by PhD from RTM Nagpur University, Nagpur. To his credit, various research papers are there which are published in national and international journals. He authored 19 books for the UG students of mathematics, starting from semester 1 to semester 6 in Himalaya publications and other publications too. He is the General Secretary of Nagpur University Mathematics Teachers Association. Since he is the founder member of NUMTA, which is Nagpur University Mathematics Teachers Association, and he is working for the students of mathematics, or he is working for the popularizing mathematics among the students. He is always trying to remove the phobia of mathematics from the mind of the students through his Ganit Darshan. He has authored the books using LaTeX. He had written his thesis using LaTeX. He had faced Viva book using LaTeX. So he is using LaTeX in everyday work, everyday's academic work, and we are lucky to hear him on this platform through this webinar. So I welcome you, sir. Thank you, sir, for accepting our invitation for this webinar. Welcome to the Dr. Rishi Kumar Agrawal sir. नमस्ते दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लेटेक्स सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक जानकारियां हासिल करेंगे। जैसा कि जो भी मैथमेटिक्स फील्ड से रिलेटेड हैं वे सभी जानते हैं कि लेटेक्स सॉफ्टवेयर एक मैथमेटिक्स टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। मेनली जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, वहाँ पर इस लेटेक्स सॉफ्टवेयर की काफ़ी बड़ी हेल्प होती है पेपर्स लिखने के लिए। तो आज छोटा सा एक प्रयास है। उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपके कुछ काम आए। सबसे पहले लेटेक्स सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा, तो आप गूगल से मिकटेक MIKTEX ये मिकटेक नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उसे अपने डेस्कटॉप पर, पीसी पर इंस्टॉल करेंगे। उसमें कुछ समय लगेगा, उतना पेशेंस रखिएगा। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम जो एडिटर यूज़ करते हैं वो है टेक्स्ट स्टूडियो, TEXSTUDIO, टेक्स्ट स्टूडियो। आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तब उसका इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पर दिखेगा और अब आगे जब भी आपको काम करना होगा आप इस आइकन की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट में जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया, टेक्स्ट स्टूडियो, ये हमें अंदर लेकर जाएगा जहां हम अपने सोर्स कोड्स लिखेंगे, कोड के फॉर्म में फाइल तैयार करेंगे। कुछ समय लेता है ये।
इस तरह का ब्लैंक शीट आपको नजर आएगा। यहाँ कुछ ऑलरेडी टूल्स दिए हुए हैं। ये बटन्स कुछ एनवायरनमेंट की बटन्स है। यहाँ टॉप में भी आप देख पा रहे हैं कुछ लेफ्ट, राइट, पार्ट, लेबल, टाइनी, ये कुछ एनवायरनमेंट है जो सॉफ्टवेयर में पेपर टाइप करते समय यूज होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे इनका मिनिमम यूज करने की और मैक्सिमम चीज़ें टाइप करके सीखेंगे, क्योंकि इनिशियली टाइपिंग प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बटन जो यहाँ हमारे काम की होगी वो ये ग्रीन कलर की बटन दिख रही है, एरो के ऊपर एरो जैसा। देखिए यहाँ पॉपअप होता है बिल्ड एंड व्यू, तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा। सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो हमारे लिए वो न्यू डॉक्यूमेंट होगा। जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपके लिए न्यू डॉक्यूमेंट होगा। आप फाइल मेनू में जाकर यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ये ओपन करेंगे। इनिशियली ये आपको ऐसा अनटाइटल्ड फॉर्म में दिखेगा। आप अब यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, केवल 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स है। ये 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स पहले जानते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्लास, तो ये स्लैश डॉक्यूमेंट जब आप ये टाइप करना शुरू करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट सेटअप है वो आ जाते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट क्लास करली ब्रैकेट। तो इनिशियली हम इससे काम शुरू करते हैं। इसको एंटर किया। अभी जो क्लास है डिफरेंट कैटेगरीज होती है। उसमें डॉक्यूमेंट कैटेगरी होती है, बुक कैटेगरी होती है। तो इनिशियली हम डॉक्यूमेंट क्लास में काम करेंगे, आर्टिकल क्लास में आर्टिकल ये टाइप के डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल। इसके बाद जो दूसरा कमांड होगा वो होगा बिगिन डॉक्यूमेंट, ये स्लैश और बिगिन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ फिर आपको ढेर सारे एनवायरनमेंट दिखेंगे, आप यहाँ ढूंढ सकते हैं बिगिन डॉक्यूमेंट। ये देखिए बिगिन डॉक्यूमेंट और ये एंटर। आपने एक चीज नोटिस की, जैसे हमने बिगिन डॉक्यूमेंट किया, ये एंड डॉक्यूमेंट भी साथ ही साथ एक लूप होता है कंप्लीट, वो जनरेट कर देता है और उसके बीच में हाईलाइट हो रहा है कंटेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स है। अब ये जो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट है, इसको देखकर हमें कुछ फिलोसॉफिकल थॉट आ रहे हैं माइंड में। ये बिल्कुल हमारे लाइफ के समान है। लाइफ बिगिन होगी तो वो एंड भी होगी। अब ये जो बर्थ और एंड, इसके बीच में हम क्या करते हैं, हमारा पूरा जीवन उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो पेपर है, आप इसके अंदर क्या कंटेंट लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक बार फिर से इतना रिपीट करना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, देन बिगिन डॉक्यूमेंट। जैसे आप ये क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली लूप तैयार हो जाएगा एंड डॉक्यूमेंट का। जो चीज शुरू होगी उसे खत्म करना जरूरी है। अब हम सीखेंगे ये अंदर कंटेंट क्या क्या होता है और उसे किस तरह से हम टाइप करते हैं। तो ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है, हम जरा इसे ओपन कर लेते हैं और इसका सोर्स क्या है वो भी जानेंगे। यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं, ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है। ये ओपन, आपने जहाँ कहीं इसे ओपन किया होगा आप वहाँ से एक बार डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ला सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे स्टोर करके रखा हुआ है, डेस्कटॉप पर वेबिनार्स टू बिगिन विथ, यस। तो ये पूरा की पूरा एक डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। अब देखिए आपको ये हाफ पार्ट में नजर आ रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट को जब हम बिल्ड करेंगे, इसके बाजू में जो बटन है वो कंपाइल करने के, इसको तैयार करता है वो व्यू, प्रॉपर व्यू दिखाने के लिए। तो हम दोनों काम एक साथ करना चाहिए, बिल्ड एंड व्यू। जबकि अलग अलग काम करना चाहे तो यहाँ कंपाइल होगा और फिर आप इससे उसे व्यू कर पाते हैं। ये दो जो अलग अलग काम कर रही बटन्स, एक सिंगल बटन वही काम करती है। तो इसे हमने किया बिल्ड एंड व्यू। देखिए ये आ गया उसका आउटपुट पीडीएफ फॉर्म में।
हाँ जी, आज का जो ये वेबिनार तैयार किया है इसके लिए हम सबसे पहले तो श्री आर लाहौटी साइंस कॉलेज मोर्शी यहाँ के प्रिंसिपल मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की कन्वीनर डॉक्टर कल्पना पवार मैडम, इन्होंने हमें मोटिवेट किया ताकि जितने सालों से हम ये लेटेक्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर पा रहे हैं इसमें से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। So I want to thank personally also to Dr. Kalpana Pawar Madam and Management Principal of R.R. Lahoti Science College Morshi। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पार्ट 1 में बिगिनर पैटर्न, कुछ एनवायरनमेंट्स कैसे क्रिएट करना, टाइप कैसे करना, अलग अलग जो चीज़ें हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, वेक्टर्स, मैट्राइसेस एक्सेट्रा। उसके बाद में नंबरिंग इक्वेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है नंबरिंग ऑफ इक्वेशंस का। देन लेवल 2 में इंटरमीडिएट लेवल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइपिंग्स वो हम देखेंगे। एडवांस लेवल 3 में हम क्रिएट करेंगे पेपर राइटिंग एनवायरनमेंट्स, जिसमें डेफिनेशंस, थ्योरम्स एक्सेट्रा एनवायरनमेंट कैसे लिखे जाते हैं। और लास्ट में लेवल 4 रिसर्च के लिए रेफरेंसेस का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो अभी जो हमें काम करना है वो हम हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में यहाँ सबसे पहले हम पार्ट 1, जैसा आपने यहाँ देखा, इसके समान ऐसा समझिए आपके पास आउटपुट है, ऐसा हम कुछ जनरेट करना चाह रहे हैं। तो पार्ट 1 अब यहाँ दिया हुआ है, पार्ट, चैप्टर, सेक्शन। तो पार्ट 1 यदि मान लो हमने यहाँ से इसको क्लिक किया तो देखिए ये आ गया पार्ट और टाइटल। इसे टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो हमने दिया है बिगिनर, यहाँ लिखेंगे हम बिगिनर। बिगिनर, और उसके बाद इसे कर दे एंटर। आप शुरुआत में कोशिश कीजिएगा आप जो कुछ टाइप करते हैं इसका आउटपुट कैसा होगा ये साथ साथ में देखते जाएं। तो आपने टाइप किया, इसका आप आउटपुट देखें। आप इसका आउटपुट देखें, ये देखिए आ गया पार्ट 1 बिगिनर। नेक्स्ट अब है 1 इंट्रोडक्शन। तो ये हो गया पार्ट 1 के अंदर सेक्शन। तो अब ये जो स्लैश है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी कमांड है ये कमांड स्लैश से शुरू होगा, स्लैश सेक्शन। फिर यहाँ पर आपको पॉपअप दिखते हैं, तो इसमें से इनिशियली ये सेक्शन यूज करें। आप इसको टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देने के बाद इसे फिर बिल्ड करके देख लें। ये आपकी आउटपुट फाइल है, यस, पार्ट 1 बिगिनर इंट्रोडक्शन, राइट। अब उसके बाद चाहते हैं इस तरह का कुछ जनरेट करना, इस तरह का जनरेट करना। तो ये हमारी अनटाइटल्ड फाइल में इसको जनरेट करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा हम क्या टाइप कर रहे हैं। पहले तो चाहिए था इन अ ट्रायंगल, तो ये तो सीधा सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट जैसा है, इन अ। अब ट्रायंगल का सिंबल है, तो जो भी मैथमेटिकल सिंबल्स हमें यहाँ टाइप करने होते हैं उसे मैथ्स एनवायरनमेंट में देना होता है। ये डबल डॉलर साइन में, डबल डॉलर, और इसके अंदर हमें ट्रायंगल चाहिए, तो फिर स्लैश के साथ TRIN ट्रायंगल। आपने कुछ प्रेस किया, ये आ गया यहाँ ट्रायंगल, एंटर कर दिया। ट्रायंगल ABC, इसके बाहर कॉमा इफ।
अब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर मैथमेटिकल फॉर्मेट आ गया है डबल डॉलर के अंदर स्लैश एंगल, फिर एंगल दिखते हैं एंगल बी कैपिटल बी इक्वल टू 90 डिग्री 90। अब डिग्री के लिए ऊपर टॉप में सर्कल जैसा चाहिए, तो जब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की बात होती है तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए ये यहाँ आपको एनवायरनमेंट दिखता है सुपरस्क्रिप्ट का और ये सबस्क्रिप्ट का। तो सुपरस्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट के लिए कैप और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चाहिए आपको वो लिखना होगा। कैप कर्ली ब्रैकेट CIR, देखिए ये जनरेट हुआ CIRC सर्कल, ये सब स्टैंडर्ड कमांड्स हैं। सर्कल देन फिर से मैथमेटिक्स सिंबल आ गया है, तो डबल डॉलर के अंदर बी स्क्वायर अब केवल सिंगल टर्म लिखनी थी, केवल नंबर लिखना था, तो कर्ली ब्रैकेट अवॉइड करके भी डायरेक्ट नंबर लिखा जा सकता था। इक्वल टू ए स्क्वायर ए कैप 2 प्लस सी स्क्वायर, बाहर आ गए फुल स्टॉप। अब जो कुछ आपने टाइप किया इसे बिल्ड करके व्यू करते हैं, इसे बिल्ड करके व्यू करते हैं। ये बिल्ड हो गया, ये व्यू हो गया। अब यहाँ एक ही लाइन में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, और जो हमने आउटपुट दिखाया था उसमें वो नीचे दिख रहा था। तो ये समझते हैं, ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट लाने के लिए, मतलब नेक्स्ट लाइन में मिडल में लाने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। मैथ्स डिस्प्ले, ये डबल डॉलर दोनों तरफ डॉलर। अब क्रिएट कीजिए इसको बिल्ड करके, ये आपकी विंडो हो गई। आ गया बी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। यस, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कुछ जो एम्फेसाइज करने की चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, जो आप चाहते हैं कि उसको हाईलाइट करें, तो आप उसे सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इस अरेंजमेंट में ये जो फुल स्टॉप था, ये फुल स्टॉप यहाँ नहीं है, गायब हो गया, क्योंकि वो इसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। ठीक है, ये फुल स्टॉप है यहाँ पे, वहां से हटके ये इधर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अभी लिस्ट एनवायरनमेंट, मतलब नंबर 1 2 3 4 इस तरह के हमको कुछ टाइप करना है चीजें, तो लिस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो दिस विल बी आवर सेक्शन, लेट अस से सेक्शन, एंटर करते हैं। यहाँ हमें चाहिए लिस्ट एनवायरनमेंट, टाइप करें LIST एनवायरनमेंट, लिस्ट एनवायरनमेंट। अब जैसे इसे हम टाइप करते हैं और इसे बिल्ड करें, तो देखिए इसके सामने नंबर 2 दिख रहा है। ये नंबर 2 यदि नहीं चाहिए होगा तो ये सेक्शन को स्टार कर दें, तो ये इसके सामने की जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग हटा देते हैं। तो किसी जगह पर यदि हमें नंबर नहीं चाहिए लेकिन बोल्ड फेस में चाहिए, तो इस पैटर्न से हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू क्रिएट लिस्ट। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए देयर इज एनवायरनमेंट बिगिन इन्यूमरेट नंबर 1 2 3 4 ऐसा काउंट करते हुए हमें चाहिए। तो यहाँ सर्च कीजिएगा बिगिन इन्यूमरेट, ये आगे बिगिन इन्यूमरेट, एंटर।
फिर देखिए इसने पूरा लूप तैयार किया है, बिगिन इन्यूमरेट एंड इन्यूमरेट, और उसके बीच में अब जो कुछ लिखा जाएगा वो आइटम स्लैश आइटम इसके साथ लिखा जाएगा। तो पहला टाइप करते हैं उसमें $, A डॉट B, जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड पर डॉट होता है, A डॉट B ये टाइप किया। इसके बाद अंदर ही डॉलर के अंदर ही चलने देते हैं, A C डॉट एक कमांड के साथ लिख रहे हैं B, A C डॉट B, C डॉट में सेंट्रल डॉट, और फिर डिफरेंस देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। और फिर एक और कमांड देते हैं A L डॉट्स B, कमांड के बाद एक स्पेस देनी होगी कमांड, ताकि वो कमांड उसको क्लियरली समझ में आए सिस्टम को, राइट। देखें इतना लिखने के बाद इसको हम व्यू करते हैं। यस, ये था A डॉट B, नॉर्मल जो हमारा कीबोर्ड का डॉट था उससे दिख रहा है, और जब हमने कमांड दिया A सेंट्रल डॉट तो वो एक्चुअल A डॉट B सेंटर में दिख रहा है। तो यस, दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A इंटू B जब हम बात करते हैं, और यहाँ लीनियर डॉट्स वो नीचे हैं, लेवल पर है वो A डॉट B। तो ये सारे सिंबल्स का कई बार हमें काम पड़ता है। नाउ सेकेंड आइटम is से इक्वेशन रिलेशन टाइप करना है, 1 + 2 + 3 प्लस बीच में ब्लैंक देना है, तो लीनियर डॉट्स प्लस, अब n+1/2 ये फ्रैक्शन लिखना है हमें, तो ये फ्रैक्शन ये दिखता है टूल्स, यहाँ क्लिक करने से D दिख रहा है, ये ऊपर देखिए फ्रैक्शन, क्लिक किया इसको, तो इसका कमांड भी याद रखेंगे हम, /फ्रैक्शन न्यूमरेटर और दूसरे कर्ली ब्रैकेट में डिनोमिनेटर। now न्यूमरेटर में लिखना चाह रहे हैं n ब्रैकेट में n+1, ये न्यूमरेटर हो गया, n+1/2 ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बाद में इसके आउटपुट एक साथ देखते हैं। अभी नेक्स्ट आइटम तैयार करते हैं, /आइटम ये लिखना होगा। अभी पहली बार तो वो अपने आप दे देता है आइटम, मैथमेटिक्स मोड में $, के अंदर। अब x⁻1 और यदि कुछ ज्यादा चीज सफिक्स में चाहिए होगी तो फिर कर्ली ब्रैकेट में उसे लिखना होगा, कॉमा x⁻2 कॉमा x⁻3 कॉमा लीनियर डॉट्स कॉमा x⁻n। ये सारे पॉइंट्स लिए मान लो हमने x1 x2 x3 up to xn, कहां पर बिलोंग्स टू R, तो बिलोंग्स के लिए इन बिलोंग्स टू के लिए कमांड है इन, यहां दिखता है इन, एंटर, एक स्पेस देकर सेट ऑफ रियल नंबर्स R, राइट। इतना देखते हैं एनवायरमेंट। देखिए यहां पर हमने स्पेस नहीं दी कहीं पर, लेकिन यहां पर भी हमने स्पेस नहीं दी, 1 + 2 + 3 के बीच में स्पेस नहीं दी, लेकिन जब वो बिल्ड करता है तो दिस इज द ब्यूटी, वो प्रॉपरली अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर देता है। यदि आपने एक से ज़्यादा भी स्पेस दे दी कहीं पर, तो वो जहाँ जितनी ज़रूरत है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उतनी ही स्पेस लेगा। हम यहाँ पर कुछ लिखना भूल गए थे, 1 + 2 + 3 + n इक्वल टू +n इक्वल टू, देखो फिर से, यस, नाउ दिस इज द करेक्शन, 1 + 2 + 3 up to n is n+1/2, and these are the n points belongs to R. Now let us generate more item. We want to write √4 is equal to
तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मैथमेटिक्स है, अंदर डॉलर के अंदर गए स्लैश स्क्वायर रूट एस क्यू आपने टाइप किया, देखिए यहाँ पर आया कुछ स्क्वायर कैप स्क्वायर कप, ये स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी, एंटर। अब किसका स्क्वायर रूट है ना, वो आर्गुमेंट यहाँ डाल देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर्ली ब्रैकेट के बाहर आके, कमांड के बाहर आकर इक्वल टू, वी नो दैट इट इज प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस स्लैश प्लस और माइनस पी एम आगे लिखा, एंटर, प्लस माइनस 2 इट इज 2। चेक करें, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेटेक्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कमांड्स देखते हैं। आइटम डॉलर डॉलर कॉस स्क्वायर थीटा स्लैश कॉस फंक्शन आ गया, स्क्वायर कैप 2 सिंगल नंबर है इसलिए कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा स्लैश थीटा, मतलब जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो यदि टाइप करें, मैक्सिमम कमांड कुछ उसी तरह से है, तो थीटा एंटर कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्लैश साइन, एंटर, साइन स्क्वायर थोड़ा सा स्पेस देने से दिखेगा वो, साइन स्क्वायर पाई यदि हम कहना चाहें, स्लैश पाई पाई इक्वल टू 1। तो ये एक नया क्वेश्चन जैसे जनरेट कर दिया हमने। इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 1, देन व्हाट थीटा इज, डॉलर में स्लैश थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। देखो जनरेट करके देखते, इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई चाहिए था, ये डिस्टर्ब हो गया, ये साइन के पावर में चले गया पाई, तो देखिए क्या गलती हुई है, साइन स्क्वायर पाई चाहिए था तो 2 यहाँ पर मिसिंग है, तो उसने पाई को पावर में ले लिया, तो साइन स्क्वायर पाई। अब बिल्ड करो, तुरंत आपको यहाँ चेंजेस दिखेंगे, साइन स्क्वायर पाई, राइट। So theta will be integer multiple of pi। आपको टाइप सेटिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अब कई बार हमें इसके आगे कुछ यदि डिनोट करना हो राइट कॉर्नर में इसी लाइन में, तो स्लैश एच फील, एंटर किया, एच फील कर्ली ब्रैकेट में, मान लो इसको हमको कुछ मार्क्स देने हैं, 2 मार्क्स, जो भी लिखना हो, समर 19 जो भी लिखना हो, तो स्लैश एच फिल कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये मार्क्स लिखिए। इसको बिल्ड करके देखिए, इसको बिल्ड, ये राइट में गया है, ये 2m कर्ली ब्रैकेट के साथ 2m। यदि इसका ब्रैकेटिंग चाहिए होगा तो अंदर इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2m, तो ब्रैकेट बन जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। तो जो भी कुछ आपको सेम लाइन के, कई बार इक्वेशन के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल इक्वेशंस, लेकिन थोड़ी इक्वेशंस को तो इक्वेशन 1 2 3 एच फिल नंबर 1 नंबर 2 एक्सेट्रा, ठीक। तो ये बातें थी इनिशियली इंट्रोडक्शन में, हमने कुछ टाइप सेटिंग्स देखी जो मोस्ट कॉमन यूज होती है मैथमेटिक्स डॉक्यूमेंट तैयार करते समय। अब ये जो बिगिन एनुमरेट है, एंड एनुमरेट, जितना आपको लिखना है इसके अंदर आइटम 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 करके लिखते जाइएगा। चलिए हम कुछ नया सेक्शन तैयार करते हैं। नेक्स्ट, सब सेक्शन के अंदर सब सेक्शन यदि चाहिए, सब सेक्शन, ये आगे एंटर, ब्लू कलर में दिख रहा है हाईलाइटेड, सब सेक्शन
हम वेक्टर्स के कुछ नोटेशन देखना चाहते हैं। वेक्टर्स इसको बिल्ड करते हैं। देखिए ये हमारा टाइप चल रहा था, सेक्शन चल रहा था 1, उसके अंदर सब सेक्शन 1.1 वेक्टर्स। इसके कमांड यूज होते हैं। लॉग लिखेंगे, log t स्क्वायर। आई वेक्टर देना है, वेक्टर आई देना है, तो वेक्टर आई स्लैश वेक्टर आई। इतना टाइप करके देखें क्या होता है। इतना टाइप करके देखने पर ये आ गया log t स्क्वायर आई, और ऊपर देखिए एरो आ रहा है, जबकि यहाँ आर बार बोलना था तो एरो नहीं था। आप एक ही जैसे सिंबल यूज करेंगे। अभी हम डिफरेंट सिंबल यूज करके टाइप सेटिंग कैसे होती है देख रहे हैं। अच्छा, log t स्क्वायर और आई बहुत पास में दिख रहे हैं, इनके बीच में यदि गैप चाहिए तो हमने तो यहाँ स्पेस दी है, लेकिन वो स्पेस नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे स्पेस क्रिएट करने के लिए स्लैश और एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, तो इस स्लैश और ब्लैंक स्पेस से एक स्पेस जनरेट हो जाएंगी। देखिए आई दूर सरक गया, आई के बाद ये वेक्टर पूरा कंप्लीट करते हैं, प्लस tan इनवर्स। ये यदि टाइप करें तो उसके लिए स्टैंडर्ड यहाँ कमांड होते हैं arc10, arc साइन, arc cos, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स के लिए ये कमांड्स होते हैं। arc10 ऑफ t, हमारा फंक्शन t में हमने कंसीडर किया हुआ है, arc10t। अब कई बार वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को कैप के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो हम एक स्पेस जनरेट कर देते हैं, उसके बाद कैप लिखना है। अब कैप के लिए जो स्टैंडर्ड कमांड होता है वो हैट, HA, वो अपीयर हो गया। तो अपने हैट हम चाहते हैं J वेक्टर, इतना बिल्ड करके देख लें, इतना बिल्ड कर आ गया J वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया J वेक्टर। इसके बाद K कंपोनेंट की टर्म भी ऐड कर लें, प्लस K कंपोनेंट के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं, E एक्सपोनेंशियल। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीज लिखना चाहते हैं, हमने E ऊपर कैप दबा दिए, एक स्पेस देने से अपीयर होगी कर्ली ब्रैकेट। कुछ बड़ा एक्सप्रेशन चाहिए होगा तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। चाहते t/2, मतलब फ्रैक्शन का यूज करना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन का यूज यहाँ से आप ले सकते हैं। यदि आपको याद हो जाए तो स्लैश FRAC फ्रैक्शन, वो ऑलरेडी हाईलाइट करके देता है, एंटर करें। न्यूमरेटर में t/2 चाह रहे हैं तो t, और डिनोमिनेटर में इसको पहले मिटाइए, इसको डिलीट कीजिए, t/2। अब इसके साथ चाहिए k वेक्टर। अब कई बार आपने देखा है कि वेक्टर को बोल्ड फेस में भी लिखा जाता है, तो बोल्ड फेस का कमांड यदि यूज करते हैं /BF, तो यहाँ BF सीरीज तो नहीं, वो डिफरेंट है। बोल्ड फेस BF स्लैश करके K, देखते इसका रिजल्ट क्या होगा। बोल्ड फेस K बिल्ड किया इसको, हाँ हो गया जैसा चाहते थे, e⁻t/2 और बोल्ड वेक्टर K। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप के नोटेशन है, बार, फिर एरो के साथ वेक्टर डिनोट करना, या यूनिट वेक्टर को कैप के साथ, या बोल्ड फेस से, ये हमने सभी चीज एक इसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट सबसेक्शन देखते हैं। मैट्रिसेस काफी यूज होता है, तो सबसेक्शन से मैट्रिसेस इसे बिल्ड कर दें तो इसका नंबरिंग देखें। ये हम फर्स्ट सेक्शन में चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन। उसमें लिस्ट एनवायरनमेंट को हमने नंबर नहीं चाहा था तो स्टार लगा दिया था, नंबरिंग उसके सामने से चले गया। फिर सब सेक्शन में 1.1, 1.2 ऐसे ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट कैसा होता है ये देखिए। लेट डॉलर के अंदर चलेगा A इक्वल टू। अब हमको अरेंजमेंट चाहिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट चाहिए या स्क्वायर अरेंजमेंट चाहिए। तो अरे ये कमांड काम करता है यहाँ पर बिगिन, BEGIN बिगिन, और यहाँ से सर्च कीजिएगा बिगिन अरे, ये ऊपर बिगिन अरे, एंटर। अब वो जो कॉलम से कितने कॉलम चाहते हैं, 1 2 3 4 कितने कॉलम चाहते हैं, तो फिलहाल हम 3 कॉलम्स की बात करते हैं। तो 3 बार C, मतलब वी वांट 3 कॉलम्स। बिगिन अरे 3 कॉलम्स। अब देखिए जैसे आपने बिगिन अरे किया तो यहाँ एंड अरे भी आ गया। अब बीच में कंटेंट की बात हो रही है, कंटेंट लिखेंगे। अब कंटेंट हमको जो लिखना होगा वो कंटेंट आते हैं रो वाइज, एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो पहला रो हम जनरेट करते हैं 1 2 -1, ये हमको 3 एलिमेंट चाहिए। लिखते समय 1 एंड 2 एंड -1, ये हो गई फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो में आना है, तो जब भी हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो नेक्स्ट लाइन में डबल स्लैश, ये हमको नेक्स्ट लाइन में लेकर जाता है। नेक्स्ट लाइन के लिए हमने एलिमेंट चूज किया है 0 -1 2, तो 0 एंड -1 एंड 2, ये हो गई सेकेंड रो। थर्ड लाइन में आना है, थर्ड रो में आना है, फिर से डबल स्लैश। थर्ड रो के लिए एलिमेंट चूज किया है 0 0 1, 0 एंड 1। कंप्लीट हो गया, ये अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये इतना अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब पहले इसको देख लेते हैं, इसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा। देखिए हमने अरेंजमेंट तैयार कर लिया, अरेंजमेंट दिख गया, लेकिन इसको यदि हमको मैट्रिक्स कहना है तो इसको दोनों तरफ से या तो हमको राउंड ब्रैकेट लगाना होगा या स्क्वायर लगानी होगी। तो वो ब्रैकेटिंग कैसे आएगी, तो चलते पहले शुरुआत में चलते हैं। ये अरे के पहले चाहिए। ये यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट्स दिए हैं। लेफ्ट ब्रैकेट, इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ऐसे डिफरेंट सिंबल्स दिए। हम लेफ्ट ब्रैकेट से शुरू करते हैं। जब लेफ्ट में ब्रैकेट स्टार्ट किया है तो इसको एंड भी करना होगा। तो जहां हमारा अरे खत्म हो रहा है, लेकिन डॉलर के अंदर इसको राइट साइड में भी ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न को देखते हुए /RIGHT राइट, और ये बंद किया ब्रैकेट, तो इसने हाईलाइट कर दिया। देखो ऊपर भी आई गया, वो यहाँ ऊपर भी आई गया। तो जब ये लूप कंप्लीट होता है ना तो ये हाईलाइट करता है। तो लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया था, राइट ब्रैकेट एंड किया। अब इसको बिल्ड करके रिजल्ट देखें, आ गया सुंदर, बढ़िया। आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ट्राई कर सकते हैं, डबल वर्टिकल लाइंस ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स अरेंजमेंट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जितने आपको कॉलम चाहिए वो अरे के साथ में लिखेंगे यहाँ कर्ली ब्रैकेट में, और फिर ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो भी रो चाहिए, रो के एलिमेंट्स को आप सेपरेट करेंगे एंड से। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए डबल स्लैश, सेकेंड रो के एलिमेंट, थर्ड रो के एलिमेंट एंड सो ऑन। तो हम इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो लेट A इज इक्वल टू दिस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात करें। डिटर्मिनेंट, तो ये जो वर्टिकल लाइंस दी है कीबोर्ड पर वो टाइप कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, L
डॉट्स, L डॉट्स, ठीक है, छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाकर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह लेना हो तो हमें इस पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ब्लैंक फाइंड करेंगे। देखिए जब आप एनवायरनमेंट में ए लिखते हैं तो इस ये ए का पैटर्न और एक सादा ए यदि आप लिखकर देखें एनवायरनमेंट के बाहर जब आप ए लिखें तो ये कैसा दिखता है, डिफरेंस है थोड़ा, ये ए और ये ए में, ये मैथमेटिक्स मोड में है पहला वाला ए, ये विदाउट मैथमेटिक्स मोड है, तो दिस इज द डिफरेंस, थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है वो। तो ये सेक्शन सब सेक्शंस देखें, ओके। नाउ वी सी नंबरिंग ऑफ इक्वेशंस, ये जो हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है जिसके ऊपर आज ट्यूटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के ये सारी चीज़ें हुई हैं, देखिए ये देखा, थोड़ा सा साइज कम कर देते नहीं, हाँ ये सब देखा, टाइप किया, वेक्टर्स कैसे टाइप करते हैं, मैट्रिसेस। अभी नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं, नंबरिंग इक्वेशंस। अपनी फाइल में आ जाते हैं, अनटाइटल्ड फाइल, नेक्स्ट सेक्शन चाहते हैं तो सेक्शन एंटर नंबरिंग इक्वेशन, नंबरिंग इक्वेशंस क्रिएट करके देख लेते हैं। नंबरिंग इक्वेशंस, हमारी फाइल ये है अनटाइटल्ड फाइल, ये नंबरिंग इक्वेशंस। अब यहाँ कुछ एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें लिखते हैं हम। इक्वेशन कई बार जब सॉल्व करते तो इक्वल टू ऐसे नीचे आता है, तो ये कहलाता है इक्वेशन अरे। कमांड इसका बिगिन इक्वेशन अरे, यहाँ से सर्च करेंगे इक्वेशन अरे, ई के लाइन में आएगा, यस ये इक्वेशन अरे। तो बिगिन हुआ तो एंड भी हुआ, बीच में लिखेंगे कंटेंट, लिखेंगे। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जब नॉर्मल वे से लिखेंगे तो इज इक्वल टू लिखेंगे, जब हमको अरेंजमेंट लिखना है तो इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में, एंड देंगे, ये एंड, ये अरेंजमेंट का पैटर्न है, एंड a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीनिंग a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में हम चाहते हैं इसको सॉल्व करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो डबल स्लैश किया, डबल स्लैश नेक्स्ट लाइन में लेकर आएगा। अब वहां पर इक्वल टू चाहिए तो फिर से एंड इक्वल एंड, और अब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, खत्म हो गया। एंड ये एंड अरे खत्म हो गया। देखिए इसको बिल्ड करके देखें, यस। तो जब आप ये अरे में काम करते हैं तो ऑटोमेटिक ये मैथ मोड में इसको सेंट्रली अलाइन करके बताते हैं, और कितना सुंदर तरीके से इक्वल के नीचे इक्वल बताया है, और साथ ही साथ उसने इक्वेशन नंबरिंग भी कर दी 1 और 2। यहाँ हमने तो दिया नहीं था कुछ, लेकिन ये इसकी खासियत है, इक्वेशन अरे की खासियत है 1 2। अब हो सकता है इनमें से हमें कुछ नंबर नहीं चाहिए, जैसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहते हैं, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसको 1 चाहते हैं, इसको नहीं देना चाहते कुछ, यहाँ नंबर ना आए। तो जहाँ नंबर नहीं चाहिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू a प्लस बी के आगे नंबर नहीं चाहिए, तो यहाँ हम लिखते हैं स्लैश नो नंबर। क्या हुआ इससे, नो नंबर का कमांड आ गया, स्लैश नो नंबर बिल्ड किया, अरे वाह बन गया। वहां से केवल ये इक्वेशन को नंबर रह गया 1,
ठीक है। अब इसी तरह की दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ये अरेंजमेंट कंप्लीट होगा, राइट। सिमिलरली बिगिन इक्वेशन अरे सर्च कीजिए यहाँ से, तो बहुत सारा काम तो यहीं से हो जाता है। इक्वेशन अरे बिगिन हुआ, एंड भी हुआ। सेम आइडेंटिटी चाहिए तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर टाइप ही कर लेते हैं। चलिए टाइप कर लेते हैं, टाइप करते हैं। तो सोचना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट बनाया, a माइनस बी लिखा, उसको कैप देके स्क्वायर किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम अरेंजमेंट में काम कर रहे हैं तो एंड इक्वल एंड a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ब्रैकेट में, अरे कुछ गलत टाइप हो गया, ये शिफ्ट दबा के एंड, राइट, एंड इक्वल एंड a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर फिर से a माइनस बी। अब हम यहाँ स्पेस नहीं दे रहे, लेकिन देखो वो प्रॉपरली स्पेस वगैरह ले लेता है वो। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में स्लैश रिजल्ट आए इक्वल के साथ में, तो एंड इक्वल एंड, रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया ये। अरे नेक्स्ट लाइन में रहने दो, नेक्स्ट लाइन में रहने दो इसको। इसे देखते हैं बिल्ड करके, यस। फिर इसने नंबर ले लिया 2 3, हम फिर से इसका नंबरिंग नहीं चाहते, इसका ना चाहे या इसका ना चाहे, तो जो जहां नंबर नहीं चाहिए वहां कमांड डाल दे, नो नंबर, यस। बिल्ड करके देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो दिस मच इज बिगिनर पार्ट। तो अभी तक हम देख रहे थे पार्ट 1, जिसको हमने कहा फॉर बिगिनर्स। अब हम एंटर करेंगे पार्ट 2 में, which we can say as a intermediate level. So type part PART with slash, पार्ट का ऑप्शन दिखता है यहाँ पर, इसको एंटर किया और इसे टाइटल देते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ओके, देख लेते इसको क्रिएट करके, बिल्ड करके, यस। इसको बिल्ड किया, ये बिल्ड पेज कंप्लीट हो गया है, ये नेक्स्ट पेज पे चले गए अपने आप। देखिए जहाँ इसका स्टैंडर्ड साइज है ये पेपर का, ये नेक्स्ट पेज पे चले गया, पार्ट 2 इंटरमीडिएट। अब इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। कई बार हमको फंक्शन को 2 सेगमेंट में एक्सप्रेस करना होता है, तो वो कैसे अरेंज होगा ये देखते। पहले वो कैसा आउटपुट होगा पहले ये देख ले। ये ऑलरेडी जो बिल्ट डॉक्यूमेंट है, हम उसी तरह से अभी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखिए इसके बाद इंटरमीडिएट ऐसा अपना फंक्शन दिखना चाहिए, थोड़ा बोल्ड किया जा सकता है। यस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स। तो ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे ये देखते हैं। अपने फाइल में आ जाते हैं, अनटाइटल्ड फाइल में। ओके, अभी हमने जो एनुमरेट देखा था वहां से नंबर जनरेट होते थे, यहाँ हमको बुलेट्स दिख रहे हैं। तो यदि मान लो हमें ये पैटर्न यूज करना है तो इसके लिए अरेंजमेंट होता है स्लैश बिगिन आइटमाइज, केवल बुलेट से इसको शो करना है। यहाँ सर्च करेंगे आइटमाइज स्लैश बिगिन आइटमाइज, आई में आएगा आइटमाइज, ये मिल गया, एंटर। तो बिगिन आइटमाइज एंड आइटमाइज
लेकिन अब इसके अंदर जो कुछ लिखा जाएगा देखिए वो आइटम के साथ में है। तो एक बार उसने ऑटोमेटिक दिया है खुद से। इसमें पहला आइटम हमें फंक्शन के लिए क्रिएट करना है। तो इफ मैथमेटिक्स मोड में डबल डॉलर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू, अब लेफ्ट में करली ब्रैकेट चाहिए, राइट में नहीं है, तो टाइप करते हैं स्लैश लेफ्ट LEFT और करली ब्रैकेट। राइट में नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते। अब देखो हमने शुरू तो किया है लेफ्ट करली ब्रैकेट से, राइट में हम दे नहीं रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज होगी, देखेंगे वो प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना। ना आफ्टर करली ब्रैकेट यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट जैसा दिख रहा है, रो दिख रही, 2 रो दिख रही है और ऐसे कॉलम दिख रहे हैं, 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो अरेंजमेंट हो गया, तो इसका कमांड दे देते स्लैश बिगिन अरेंजमेंट। बिगिन मैट्राइसिस में हमने इस तरह का अरेंजमेंट यूज किया था, स्लैश बिगिन अरेंजमेंट अरे। अब वहां तो कॉलम होते थे, सीधे सीधे 3 कॉलम होते थे और वो ऑटोमेटिक उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लेता था। जब यहाँ इस तरह का फंक्शन हमको अरेंज करना है तो यहाँ अलाइनमेंट देना होगा। तो वो अलाइनमेंट सेंट्रल अलाइनमेंट CLL ये कमांड के साथ देते हैं, सेंट्रल अलाइनमेंट। अब ये कंटेंट की जगह कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट पहला रो है हमारा X, सेपरेटर वैसे ही एंड, फिर इफ। अब जब ऐसे मैथमेटिकल एनवायरनमेंट में कोई वर्ड लिखना हो, अल्फाबेट्स लिखने हो, तो उसको /mbox ये कमांड आ गया, इसके अंदर लिखेगा। तो हम जैसा चाहते वैसा उसका आउटपुट मिलेगा। mbox बाहर निकल के सेपरेटर दिया एंड, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन के लिए स्लैश ग्रेटर G इक्वल ग्रेटर इक्वल टू कमांड दिखता है, एंटर कर दिया 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद दिख रहा है सेमीकोलन, सेमीकोलन एंटर किए, एक रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो में आने के लिए डबल स्लैश, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट लाइन में चाहिए -x सेपरेटर एंड, फिर से mbox एंटर, इफ लिख दिया बॉक्स के अंदर, बाहर सेपरेटर एंड एंड देन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन, ये तो नंबर, ये तो कीबोर्ड पे मिल जाएगा, x लेस देन 0 और फुल स्टॉप। ये हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई। अभी हमको बस बाहर निकल जाना है इसके, डबल स्लैश देके अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया ये एंड अरे। अभी ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, इसको बिल्ड करके देखते हैं। ठीक है, इसको बिल्ड किया। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन हमारे सैंपल फाइल की है। अभी हम जहां काम कर रहे हैं अनटाइटल्ड में, तो वो इसने इसको बिल्ड नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे का तो अभी हमने लिखा नहीं है, वो तो हमारा टाइप होने का है। तो यहाँ कुछ एरर बता रहा है, मिसिंग करली ब्रैकेट। हाँ, हमने लेफ्ट ब्रैकेट तो दिया, राइट ब्रैकेट नहीं दिया है। तो जो भी हमने शुरू किया हो उसको खत्म करना जरूरी है। तो ये जो लेफ्ट ब्रैकेट का जो काउंटर पार्ट है जो नहीं मिल रहा, उसके लिए इस तरह का स्लैश राइट RIGHT राइट। अब हमको करली ब्रैकेट तो नहीं चाहिए, तो उसके बदले ये डॉट लगा देते हैं। देखिए वहाँ कमांड दिख रहा है स्लैश राइट डॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। स्पेशली जब ऐसे फंक्शन के लिए नोटेशन हम तैयार करते हैं, तो एक पार्ट से तो दिखता है हमको करली ब्रैकेट, दूसरे पार्ट में नहीं दिख रहा, तो उसका जो काउंटर पार्ट है स्लैश राइट करली ब्रैकेट, उसके लिए ऐसा डेलीमीटर यूज होता है, डॉट लिख के। इसको एंटर कर दिया और अब बिल्ड करके देखते हैं। अब बिल्ड करके अभी भी प्रॉब्लम बता रहा है, ये कहता है कि मिसिंग डेलीमीटर। ओके, मिसिंग डेलीमीटर, इसका मतलब ये जो कमांड है स्लैश लेफ्ट करली ब्रैकेट, तो जब तक कि इसके साथ स्लैश राइट करली ब्रैकेट नहीं होगा, ये पूरा नहीं तैयार होगा, ये पूरा नहीं तैयार होगा। अच्छा चलो देखे देखते, डॉट की जगह करली ब्रैकेट देखे देखते क्या लेता था वो। यदि डॉट नहीं, हम करली ब्रैकेट ही दे दें, तो अभी क्या अरेंजमेंट देता है, बिल्ड कर रहे हैं इसको। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, राइट में तो लेने दे ही नहीं रहा है, तो राइट में तो चाहिए नहीं, तो उसकी जगह तो डॉट लिख दे, क्योंकि डॉट चाहिए था तो डॉट लिख दिया। और
ये जो सिंगल करली ब्रैकेट यूज हो रहा है, ये सिंगल करली ब्रैकेट स्पेशल कैरेक्टर जैसा यूज होता है। कुछ स्पेशल कीज होती है इसमें, तो जब स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करने होते हैं तो उसको यूज करने के पहले हमको स्लैश लगाना होता है। ये हमने देखो करली ब्रैकेट के सामने स्लैश लगाया, तो अकेला करली ब्रैकेट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के कैरेक्टर के तौर पे यूज हो रहा है। अब बिल्ड करके देखते हैं। अरे वाह, काम हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। स्लैश लेफ्ट करली ब्रैकेट अकेला काम नहीं कर रहा था, स्पेशल कैरेक्टर होने की वजह से उसको यूज करने के लिए हमको उसके सामने एक और स्लैश देना पड़ा, और फिर बाकी का तो अरेंजमेंट हमने तैयार किया ही। यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये हमने सेंट्रल अलाइनमेंट के तौर पे काम किया था, CLL। तो ये सेंट्रली अलाइन दिख रहा है। इसको यदि मान लो हम राइट अलाइनमेंट करें तो, राइट RLL राइट अलाइनमेंट करें तो देखो, इसको बिल्ड करके यहाँ आप इसके जो आउटपुट है ना, उसमें ऑब्जर्व करिएगा कुछ चेंज हो रहा है क्या। हाँ, ये राइट साइड से अलाइन हो गए। राइट साइड से देखो एक्स की पोजीशन चेंज हो गई। फिर से हम आर को सी करके देखते हैं, ये सी करके देखते हैं। अभी पोजीशन देखिएगा एक्स और उसके नीचे -x की, ये बिल्ड किया, ये भी सेंट्रली अलाइन हो गए हैं, राइट। और यदि इसको आर किया तो बिल्ड किया, तो अभी ये राइट अलाइन हो गए। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का भी ऑप्शन होता है क्या, एल करके देखते हैं इसको, एल लेफ्ट अलाइनमेंट, एल ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, है ना। तीनों चीजें ये लेफ्ट साइड से अलाइन। इसमें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में, क्योंकि वो सेम है, दोनों ऊपर नीचे इफ है, ऊपर नीचे एक्स और 0 से खत्म हो रही है। एक्स और -x में हमको चेंजेस दिख रहे हैं। तो तीनों कमांड आपको समझ आ गए। लेफ्ट अलाइन LLL, राइट अलाइन RLL राइट अलाइन। इसको एक बार पे और बिल्ड करके देख लीजिए। राइट अलाइन हो गया, एक्स चेंज हो गया, इधर से इधर आ गया राइट साइड में। और सेंट्रल अलाइन के लिए CLL, इसको बिल्ड करें सेंट्रल अलाइन। तो इस तरह से ये फंक्शन के जो एक्सप्रेशन है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफी केयर लेनी पड़ती है। ओके, तो इस तरह से शुरुआत में आप एक एक चीज टाइप करेंगे। हो सकता है टाइप करते समय कोई चीज मिस हो जाए, तो केयरफुली उसको रीड करके कहाँ मिस्टेक हो रहा है। और यहाँ आपका जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है ये बहुत काम का होता है। आपका जो लॉजिक कि किस वजह से ये मिस्टेक हो रही होगी, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये थिंकिंग प्रोसेस आपको ये लेटेक्स को और कन्वीनियंटली यूज करने में मदद करेंगी। चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये फंक्शन हो गया। फंक्शन को हम पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। देन इफ फंक्शन इज दिस, देन $लिमिट LIM /लिमिट। अब लिमिट x टेंस टू कुछ नंबर देना चाहते हैं, x टेंस टू, तो सफिक्स में होता है वो, तो सफिक्स करली ब्रैकेट में, क्योंकि चीजें बड़ी होगी, करली ब्रैकेट में x टेंस टू 1, तो x अब टेंस टू के लिए सिंबल यूज होता है /राइट एरो, RIGHTARR, ये आ गया ऊपर, एंटर, /राइट एरो स्पेस देके 1, /राइट एरो 1 ऑफ f of x, राइट। डॉलर के अंदर काम किया इतना। इसको बिल्ड करते हैं, देखो कैसा दिख रहा है। ये ऐसा तो नहीं चाहिए हमको। लिमिट x टेंस टू 1, ये x के नीचे होना चाहिए पूरी तरह से। तो ये लाने के लिए जहां हमने लिमिट इंट्रोड्यूस किया था ना, उसके पहले इंट्रोड्यूस करना होता है डिस्प्ले स्टाइल /डिस्प्ले स्टाइल STYLE /डिस्प्ले स्टाइल। ये कमांड दे दिया। अब बिल्ड करें, हो गया काम। लिमिट x टेंस टू 1, देखिए एक कमांड से उसका पूरा व्यू चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से चीजों को प्रॉपर वे में दिखाने के लिए ये डिस्प्ले स्टाइल बहुत काम का कमांड है, f of x, और ये अपना फुल स्टॉप, राइट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइटम, अभी एक आइटम क्रिएट किया। नेक्स्ट आइटम वी क्रिएट
एंटर, आइटम। इसमें हमने आयलर्स फंक्शन शो किया था, आयलर्स फंक्शन और होमोजेनियस फंक्शन। देखिए तो मिनिमाइज करके यहाँ तक के सब सीख गए हम। नंबरिंग हो गया। इंटरमीडिएट में हमने जरा कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर था, दो कॉम्प्लिकेशन थे, एक तो ऐसा सेगमेंट फॉर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट करना, और ये लिमिट काफ़ी यूज होता है उसका। हाँ, ये बॉक्स में 2 दिख रहा है, ये हम लास्ट में जब रेफरेंसिंग आ जाएगा उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन यूज करना है, तो अपने फाइल में ये पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन यूज करते हैं। आइटम इफ $, z इज इक्वल टू, जहां मैथमेटिकल पार्ट दिखता हो। अच्छा, बिना डॉलर के लेके देखते क्या होगा। ये z अब यहाँ वैसे एज सच मैथमेटिक्स तो कुछ है नहीं, z इक्वल टू f ऑफ x, y ऐसा लिया है। इसका व्यू देखते क्या देता है। नहीं, ऐसा तो नहीं था, इससे तो कुछ अलग था वो। अब इसी को डॉलर में लेकर देख लो, इसी को डॉलर में लेकर देख लो। डॉलर, ये डॉलर बिल्ड, दिस इज मच बेटर। फॉन्ट साइज चेंज हो गया उसका, स्टाइलिश हो गया थोड़े वो, ठीक है ना, स्टाइलिश हो गया। तो यस, डॉलर इफ z इज इक्वल टू f ऑफ x y इज अ homogeneous function of degree, is a homogeneous function of degree n। फिर वो n सादा दें तो कैसा दिखता है, n सादा दिया तो कैसा दिखता है देखो। और अभी इसी को यदि डॉलर में दे दें, इसी को डॉलर में दे दें तो इसका फॉन्ट देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइट। इसको बिल्ड किया, बदल गया, थोड़ा सा इटैलिक शेप में आ गया, राइट। हाँ, देन अब जो कुछ लिखना है हमको, x del z by del x, ये मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा डॉलर के अंदर। तो रेशो बनाना है, x रेशो बनाना है। रेशो लेते हैं, फ्रैक्शन, गलत वाला यूज हो गया, ये फ्रैक्शन। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कमांड होता है /PARTIAL, पार्शियल। ये साथ में इनके डिटेल्स भी आते हैं, और शुरुआत में आप ये सब पढ़ते जाइएगा तो आपको उसके मीनिंग क्या है, किस फॉर्म में कब यूज होते हैं वो समझ में आएगा। पार्शियल del z बाय del x चाहिए, del z, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में पार्शियल PARTI, पार्शियल एंटर x del z बाय del x चाहिए था, फ्रैक्शन के सामने x दे देते हैं, x del z बाय del x प्लस y del z बाय del x। फिर फ्रैक्शन की जरूरत है, आपको कमांड याद हो गया तो वैसे टाइप करें, /frac आ गया, एंटर। वो न्यूमरेटर में पार्शियल PARTI, पार्शियल दिख रहा है यहाँ पर, यदि आपने पूरा टाइप नहीं किया तब भी दिखते हैं। पार्शियल z डिनोमिनेटर में, ये अब डिलीट करना होगा डिनोमिनेटर का, DEN डिनोमिनेटर डिलीट किया। पार्शियल PARTI, पार्शियल y, ये करली ब्रैकेट के अंदर से बाहर आया, इक्वल टू NZ। ये रूल तैयार हो गया कंप्लीट। इसको बिल्ड कर लें, ये आ गया रिजल्ट। अब देखिए ये पूरा साथ में आया है, देन का स्पेलिंग देन बिल्ड। अब यदि इसको हमको थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो ये जो हमने सिंगल डॉलर दिया था, ये सिंगल डॉलर को डबल डॉलर कर देते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों जगह। ये दोनों जगह डबल डॉलर से इफेक्ट क्या हो गया, बिल्ड। यस, ये मैथमेटिकल मोड में आ गया अपने आप। नेक्स्ट लाइन में सेंट्रली अलाइन होके दिखने लगा ये
x del z by del x प्लस y del z by del y इक्वल टू nz। ओके, हमने तो यहाँ फुल स्टॉप दिया था, ये फुल स्टॉप कहीं और चले जाता है, ये फुल स्टॉप कहीं और चले जाता है, वो इसके साथ में नहीं लेता है, ठीक है। इसकी वजह से ना गैप भी तैयार हो जाती है, तो यदि गैप नहीं चाहिए होगा तो इसको हटा देते हैं। ये नेक्स्ट लाइन जब टाइप करेंगे उसके बाद करते हैं। हाँ, जैसे इसके ऊपर हमने एक बार यूज किया था ना, वहाँ एक्सप्लेन करते इसको। हाँ, ये काफ़ी बड़ी गैप दिख रही है ना, ये काफ़ी बड़ी गैप दिख रही है, ये डॉट की वजह से गैप आ गई है। तो ये डॉट यदि हम यहाँ से हटाएं लिस्ट एनवायरनमेंट के पास से, ये यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। ये हटा दिया और इसको बिल्ड किया, हाँ, वो जो गैप थी वो गैप कम हो गई। तो ये भी डॉट हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि सेंट्रली अलाइन डाल दिया, उसको मैथमेटिकल मोड में डाला है। तो आइटमाइज के लिए काफ़ी होगा इतने एग्जाम्पल, दो बुलेट हमारे सामने दिख रही है। नाउ वी गो टू लेवल 3, दैट इज एडवांस लेवल। एडवांस, अच्छा, ये सब कुछ एंड डॉक्यूमेंट के पहले हो रहा है, एंड डॉक्यूमेंट के पहले हो रहा है। यहाँ एक चीज और एक्सप्लेन करते हैं, यदि मान लो हमको इसको सेपरेट करना है, हम यहाँ पर कुछ अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो ये परसेंटेज का सिंबल और फिर इसको सेपरेटर दे दिए। इसको यदि बिल्ड करें तो इसका कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है, तो ये जो परसेंटेज है ये उसके आगे के जो कमेंट्स है उसको नलीफाई कर देते हैं। यदि ये परसेंटेज हटा दिया और अब बिल्ड करके देखो, ऐसा दिखने लगा, नहीं चाहिए हमें ये परसेंटेज से इसको सेपरेट कर दिया। ये पार्ट 2 सेपरेट, पार्ट 1 के बाद में भी ऐसा सेपरेटर लगा देते हैं, अपनी सोर्स फाइल के काम का रहेगा, अपने को समझने के लिए आसानी होगी कि कहाँ हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं। यस, यहाँ से हमने पार्ट 2 तैयार किया, उसका इफेक्ट व्यू में नहीं आएगा, इसका इफेक्ट, यस, पार्ट 1 खत्म हो गया। ये अपने समझने के लिए सोर्स फाइल में कई बार बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है सोर्स फाइल की, तो परसेंटेज का इंपॉर्टेंट रोल ऐसा है। हाँ, जब कभी परसेंटेज यूज करना होगा, जैसे प्रॉफिट लॉस में जब परसेंटेज यूज करना तो उसके पहले स्लैश दे के यूज करते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बातें आने लगेंगी सामने। नेक्स्ट पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एडवांस पार्ट 3, वो ऑटोमेटिक अपना नंबर लेता है, पार्ट 3 एडवांस। बिल्ड करके देखो, साथ साथ में बिल्ड करने की हैबिट रखिएगा शुरू में। एडवांस ये आ गया। अभी यदि मान लो हमको कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है, हमने काम किया कहीं पर सेक्शन 1 2 3, और हमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन में सपोज 5 सेक्शन चाहिए तुरंत, जिसके कुछ सेक्शंस नहीं हो वहां पर, तो सेट काउंटर सेक्शन 1, फिर से टाइप करते हैं, पॉपअप में यदि मिलता हो तो वहां से ले लेंगे। सेट काउंटर CO नहीं है, कोई बात नहीं, काउंटर सेक्शन। एक चीज और नोट की होगी कि जब कमांड के साथ में आता है तो करली ब्रैकेट में लिखना होता है चीजें, देखिए ऊपर में भी करली ब्रैकेट के साथ एंटर की हुई बातें, तो एक्स्ट्रा की चीजें, एक्स्ट्रा का ब्रैकेट नहीं चलेगा उसको। सेक्शन, और उसके बाद में कौन से नंबर से हम ये चाह रहे हैं, तो मान लो हम 4 से चाह रहे हैं, सेट काउंटर सेक्शन 4। कुछ कमांड्स है, अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो कुछ हमको एडवांस में कमांड्स एंटर करने होंगे। तो पहला हमने डाला है सेट काउंटर सेक्शन 3, नेक्स्ट इज सेट काउंटर इक्वेशन, सेट काउंटर इक्वेशन। इसको भी हम नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं, QUATION क्वेश्चन, कहाँ से, तो इसको नंबर दिया है 0 से, तो 0 ऑनवर्ड्स काउंट करेंगे। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं देखते हैं, अभी थोड़ा और कुछ कमांड्स लगेंगे। /new थ्योरम, THEOREM /new थ्योरम। अब ये कमांड के साथ में आप डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं, थ्योरम जनरेट कर सकते हैं, प्रूफ जनरेट कर सकते हैं, लेमा जनरेट कर सकते हैं। तो जिस कैटेगरी का जो भी आपको जनरेट करना है उसका एब्रीविएशन
ये ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यू थ्योरम, इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ है एनवायरमेंट नेम, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, थ्योरम चाह रहे हैं, डेफिनेशन चाह रहे हैं, लेमा चाह रहे हैं, प्रूफ चाह रहे हैं। यहाँ पर चेंज नहीं होगा, न्यू थ्योरम न्यू डेफिनेशन ऐसा नहीं होगा, वो न्यू थ्योरम एज इट इज होगा। तो हम यदि डेफिनेशन चाह रहे हैं तो उसका एब्रीविएशन DEFN, ये एब्रीविएशन देगा। क्या चाहिए हमें, डेफिनेशन, तो DEFINITION डेफिनेशन। कहाँ पर चाहिए, ये कैप्शन हटा दो, हमने डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन किसमें चाहिए, सेक्शन में चाहिए, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है सेक्शन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कमांड्स है, एक बार आपको टाइप करने पड़ेंगे, बाद में आप कॉपी पेस्ट करके इसको अपने फाइल में यूज कर सकते हैं। ये तो डेफिनेशन के लिए तैयार किया हमने एब्रीविएशन के साथ। अभी प्रूफ थ्योरम के लिए तैयार करते हैं। न्यू थ्योरम, THEOREM, न्यू थ्योरम। स्ट्रक्चर ले लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये वाला यूज किया था हमने, कहाँ यूज करना था, न्यू थ्योरम, एनवायरमेंट नेम, कैप्शन, क्या चाहते हैं आप, थ्योरम चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं, और कहाँ चाहते हैं, विद इन, ठीक है। अभी हम ये वाला पार्ट हमने पहले यूज कर लिया कैप्शन के बाद में सेक्शन का पार्ट। अब हमको थ्योरम शो करना है, थ्योरम को हाईलाइट करना है। तो एनवायरमेंट का इनिशियल THM, ये एब्रीविएशन है THM, और कैप्शन में थ्योरम THEOREM, थ्योरम, राइट। अब जो इक्वेशंस आएगी, चलिए वो हम बाद में कमांड, एडिशनल कमांड देंगे, इसके बाद में काम करना शुरू करते हैं। थोड़ा कुछ डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, कुछ फिर से रिपीट करते हैं। सेट काउंटर सेक्शन 4 ऑलरेडी हमने ऊपर क्रिएट करके रखा है, सेक्शन 1 और 2। यहाँ हम जो नंबर देंगे वहां से वो काउंट करना शुरू करेगा। इसके पहले हमारे इसमें इक्वेशन नंबर आ चुकी है 1 और 2। अब ये कमांड देने से वो 1 से स्टार्ट करेगा। न्यू थ्योरम / न्यू थ्योरम डेफिनेशन जनरेट किया / न्यू थ्योरम थ्योरम जनरेट किया। अब बिगिन डेफिनेशन लिखना चाह रहे, बिगिन डेफिनेशन सर्च कीजिएगा, यहाँ मिलेगा आपको बिगिन डेफिनेशन, ये मिला डेफिनेशन, एब्रीविएशन DEFN के साथ में, एंटर। तो बिगिन डेफिनेशन एंड डेफिनेशन लूप तैयार हो गया। इसके अंदर कंटेंट लिखना है कि हमने क्या डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन हम चाह रहे हैं मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की, तो उसको ये ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ये जैसे यहाँ लिखा था सेक्शन मॉडुलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन टाइप की हुई है, तो हम वहां से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, कॉपी पेस्ट। देखते हैं इसका रिजल्ट बिल्ड किया पेज 2 में, यस। अब देखिए डेफिनेशन 4, ये 4 क्यों आया है, ये हमने सेक्शन को 4 टाइप किया था। यदि यहाँ हमको चेंज कर दे 5, बिल्ड करें, ये 5 ले लिया, तो आप सेक्शन 5 की फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन 1 ऑफ सेक्शन 5, ठीक है। इसका रोल समझ में आ गया। हम इसको 3 ही कंटिन्यू कर देते हैं अभी, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, यस। डेफिनेशन 1 इन सेक्शन 3 मॉडुलस फंक्शन। अब आपने तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर किया, स्क्वायर ब्रैकेट में उसने ये राउंड ब्रैकेट अपने स्ट्रक्चर के डिफॉल्ट फॉर्मेट से यूज किया है। डेफिनेशन किसकी बोलना चाह रहे हैं आप, मॉडुलस फंक्शन की। आप यहाँ जो टाइप करेंगे वो आ जाएगा, ये ब्रैकेट अपने आप से लेगा, और ये जो कॉपी पेस्ट किया है वो एज इट इज आ गया फंक्शन। तो ये हो गया डेफिनेशन का एनवायरनमेंट तैयार। अब थ्योरम क्रिएट करते हैं। बिगिन BEGIN बिगिन थ्योरम सर्च करके देखिए, मिलता है कि यहाँ पर T में आएगा, TH, हाँ देखिए ये एब्रीविएशन के साथ में चाहिए, बिगिन थ्योरम। तो उसका लूप तैयार हो गया। हमको कंटेंट अपनी तरफ से लिखना है।
बिगिन थ्योरम एंड थ्योरम के बीच में कंटेंट अपनी तरफ से लिखना है। तो हमने ऊपर आइलर्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट लिखा था, इसी को यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। कॉपी यहाँ पर किया, इसको पेस्ट पेस्ट बिल्ड करके देखिए, ये आ गया थ्योरम 1। थ्योरम का नंबरिंग वो 1 2 3 अब ऑनवर्ड्स अपने आप लेते चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा चाहिए तो ऐसा रहने दीजिए, और यदि इसको एक ही लाइन में शो करना है तो ये डबल डॉलर का $1 हटा दीजिए, $1 यहाँ से हटा दिया, $1 यहाँ से हटा दिया। अब बिल्ड कर लो इसको, अब बिल्ड कर लो। हाँ, अब देखिए आधी चीज यहाँ रहेगी, आधी चीज नीचे आ रही है। अच्छा, हम अभी ये डिफॉल्ट पेज साइज में काम कर रहे हैं, डिफॉल्ट पेज साइज में। इसका पेज विड्थ और पेज हाइट ये भी एडजस्ट की जा सकती है कुछ एक्सटेंट तक, और इसका जो डिफॉल्ट पेपर टाइप होता है वो A4 टाइप होता है। हमें इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो नेक्स्ट लाइन में जहाँ से लाना है वहाँ पर डबल स्लैश दे देते हैं, ये डबल स्लैश बिल्ड कीजिए। जो आपने एंटर किया उसके बाद बिल्ड करके देखते जाइए। यस, ये आ गया नीचे। अब फुल स्टॉप भी दे दो यहाँ पर, फुल स्टॉप, बिल्ड बिल्ड। फिर डेफिनेशन होगी, थ्योरम होगी, और एक डेफिनेशन और एक थ्योरम और करके देखते हैं, तब इसका पैटर्न एग्जैक्ट समझ में आएगा। बिगिन डेफिनेशन, बिगिन डेफिनेशन, ये गया ऊपर, बिगिन डेफिनेशन। लूप तैयार हुआ है, कंटेंट अपनी तरफ से डालना है, कंटेंट अपनी तरफ से डालना है। यहाँ कंटेंट हमने लिया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। हाँ, तो किसकी डेफिनेशन बोलना चाह रहे हैं? इन्वर्टिबल लिख दो अपनी तरफ से, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगी? डेफिनेशन तैयार करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A, हम मैथमेटिकल मोड में लिखते हैं उसको। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। अब सिंबल चाहिए नॉट इक्वल का, तो सोच कर देखिए, कुछ चीजें तो आप सोच कर भी कमांड याद रख सकते हैं। तो स्लैश नॉट इक्वल का E जैसे ही प्रेस किया तो देखिए आपको इतने सारे सिंबल बता रहा है, तो इसको एरो करते, ये हो गया नॉट इक्वल। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि हाँ ये सिंबल नॉट इक्वल, EQ नॉट इक्वल के लिए चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ये अपना डेफिनेशन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। बिगिन डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन है ऑलरेडी, बिल्ड करके देख लेते हैं। यस, तो दिस ऑफ सेकेंड डेफिनेशन इन सेक्शन 3। अब ये अधूरा रह गया, फिर से आधी चीज यहाँ, ये आधी वहाँ है। तो या तो आप यहीं से यहाँ से एंटर करके देखते हैं, स्लैश पूरी नेक्स्ट लाइन में लेता है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं लेता है वो, ठीक। तो कंटिन्यूशन में यहीं से होगा। अच्छा, यदि मान लो हम इसी को नेक्स्ट लाइन में लिख कर करते हैं तो क्या होगा? हमने तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख कर लिखा, अब इसको बिल्ड कर देते हैं तो भी वो उसके बाजू से ही लेता है। मतलब जब डेफिनेशन की बात हो रही है तो डेफिनेशन के आगे से ही वो स्टार्ट करेगा। तो इसके बाद में इसको सेपरेट लाइन में, अलग लाइन पे ले लेते हैं, डबल स्लैश देके डिटर्मिनेंट A इज। अच्छा देखिए, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये सब इटैलिक हो गया है। तो जब आप डेफिनेशन मोड में या थ्योरम मोड में काम करते हैं तो इटैलिक बन जाता है। और एक और थ्योरम जनरेट करते हैं, बिगिन थ्योरम, बिगिन थ्योरम। अच्छा, बहुत दूर तक के जाना पड़ेगा। अब आपको यदि समझ में आ गया तो बिगिन कर्ली ब्रैकेट THM थ्योरम, बिगिन थ्योरम। यस, यहाँ हम स्टैंडर्ड रिजल्ट ले लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट वो आइडेंटिटीज लिखते हैं ना, A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर।
यहाँ से ले लेते हैं, इनको कॉपी पेस्ट करते हैं। यस, कॉपी, और हमने क्या किया, अच्छा अब एक बात ध्यान रखिए, जब हमने अपने मन से टाइप किया इसको, बिगिन थ्योरम को हमने टाइप किया, हमने वहां से नहीं लिया, तो पूरा लूप तैयार नहीं हुआ, तो लूप अपने तरफ से तैयार करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ में, इसी के साथ ही साथ में एंड, END एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर THM लूप तैयार होगा। अब यहाँ कंटेंट दे देते पेस्ट, बिगिन थ्योरम, ये हाईलाइट हो रहा है, बिगिन थ्योरम और एंड थ्योरम के बीच में हमने कंटेंट दिया है। देखिए थ्योरम, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ गए। अब क्योंकि अरेंजमेंट में काम था इसलिए नेक्स्ट लाइन में आया है, इसके नंबरिंग 1 और 2। अब ये नंबरिंग को यदि हम चेंज करना चाहते हैं, हम इसको सेक्शन की नंबरिंग देना चाहते हैं, सेक्शन की नंबर की, हम सेक्शन 3 में काम कर रहे हैं, तो ये 3.1 3.2 ऐसा यदि दिखे तो एक कमांड यहाँ जनरेट करना होगा। एक कमांड जनरेट करते हैं, /renew कमांड, /renew कमांड, ये दिख रहा है, आ गया, ये एंटर कर दिया, /renew कर्ली ब्रैकेट। अब ये पहले वाले इसमें हम इक्वेशन को नंबरिंग करना चाह रहे हैं, तो /the इक्वेशन, ये सब स्टैंडर्ड कमांड है, ये याद रखने होंगे। /the इक्वेशन कैसे चेंज करना चाह रहे हैं उसको, तो हमको उसको सेक्शन में 3.1 3.2 ऐसा चाहिए, तो सेक्शन, द सेक्शन, जिस सेक्शन में इक्वेशन यूज कर रहे, द सेक्शन, फिर डॉट और अरेबिक इक्वेशन, EQUATION, अरेबिक इक्वेशन। ठीक है, ये कमांड दे दिया। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। ये नंबरिंग का क्या हो रहा है देखिएगा, ये चेंज हो गई 3.1 3.2। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने अरेबिक लिखा तो ये अरेबिक नंबर में आ रहा है 1 और 2। यहाँ पर आप रोमन करके देखिए, ROMAN, रोमन, बिल्ड करो, ये हो गया रोमन 3.1 3.2। लेकिन ये स्मॉल रोमन दिख रहे हैं, तो ऐसा सोचकर देख सकते हैं कि यदि कैपिटल रोमन चाहिए तो कैपिटल रोमन चाहिए तो इसको कैपिटल R बना दिया यदि। अब बिल्ड करो, हाँ 3.1 3.2। तो कई चीजें मिलती जुलती है। एक बार आपके कंसेप्ट लॉजिक यदि क्लियर हो गया तो आप काफी कमांड्स तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे था, हम इसको अरेबिक में रहने देते, अरेबिक बिल्ड कर देते 3.1 3.2। ओके, अच्छा अब जो हमने यहाँ पर सेट काउंटर किया था ना, ये सेट काउंटर का रिजल्ट देख लीजिए, और अलग अलग यहाँ यदि 5 किया, यहाँ यदि इसको थोड़ा साइज स्मॉल करके पूरा स्क्रीन एक साथ देख सकते हैं, बिल्ड करें तो ये डेफिनेशन में 5.1 आ गया, डेफिनेशन 5.2 आ गई, इक्वेशन सेक्शन 5 किए तो 5.1 5.2। ठीक है, अच्छा यदि मान लो आपको ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसी नंबर के आगे चाहिए, तो 0 के बदले यदि हम यहाँ पर कुछ नंबर देते हैं, सपोज 10, तो सेट काउंटर इक्वेशन 10, तो इक्वेशन का नंबरिंग कहाँ से शुरू करेगा, 11 से, 11 ऑनवर्ड शुरू किया है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ कमांड्स आपके पास है। आप जैसा अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप उतने ब्यूटीफुली उसको क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसको 0 कर दिया और हम सेक्शन को कंटिन्यू नंबर में रखना चाह रहे हैं, तो इसको सेक्शन 3 दे दिया। अभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। सेट काउंटर का ये स्टैंडर्ड कमांड है, ये जो 4 कमांड है ये स्टैंडर्ड कमांड है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और बाद में जब आप नेक्स्ट फाइल करेंगे तो कॉपी पेस्ट से काम हो जाएगा। चलिए, सब चीज़ें अपने हिसाब से आ रही है अभी। हाँ, सो दिस इज आवर पार्ट
3. Now last and important part is creating references. Creating reference. So last part देखते हैं इसका research part to generate bibliography, right? तो यहाँ separator दे दिए. Now we create part, next part, और इसको नाम देते हैं research. अब यहाँ कुछ स्टैंडर्ड कमांड होते हैं, तो वो लेते हैं /begin बिब्लियोग्राफी. तो वो कमांड होता है द बिब्लियोग्राफी. यहाँ से सर्च करेंगे, ये मिल गया द बिब्लियोग्राफी. कंप्लीट लूप ले लिया उसने. और ये कमांड है वाइडेस्ट लेवल, काम करता है ये कमांड एज इट इज. यहाँ अपना कंटेंट एंटर करेंगे, तो जो हमने रेफरेंस लिए हैं ये ट्यूटोरियल तैयार करने के लिए, हम वही एंटर करते हैं. अभी जैसे इसके पहले तक हम आइटम लिखा करते थे, जब यहाँ काम होता है तो यहाँ बिब आइटम होता है, बिब्लियोग्राफी का आइटम, बिब आइटम. और बिब आइटम के साथ में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका. यस, ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं, बिब आइटम. ओहो हाँ, करली ब्रैकेट. अब ये बिब आइटम में कुछ लिखना होगा इनिशियली. एक मिनट, इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दें. /बिब आइटम एंटर कर दिए. यहाँ पर कुछ इनिशियल लिखना होगा, वो कैसे लिखना अभी हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं. जो हमने यूज़ किया है वो है लेटेक्स, LATEX. इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, LATE कैपिटल X, लेटेक्स ट्यूटोरियल्स, लेटेक्स ट्यूटोरियल्स प्रीमियर, ये आ रहा है. इसका ऑनलाइन एड्रेस दिया है http:// देखिए ये स्लैश, अभी जो हम ऊपर ये स्लैश यूज कर रहे हैं उनसे डिफरेंट है. /www.tug.org.in. यहाँ से आपको ये ऑनलाइन मटेरियल मिल सकता है. ओके, अब इसका हम इनिशियल देते हैं LT. याद रखने के लिए आसान होता है, लेटेस्ट ट्यूटोरियल. इसको बिल्ड करके देख लें. बिल्ड यहाँ पर देखें. यस, ये आ गया 1 लेटेस्ट ट्यूटोरियल प्रीमियर, और ये ऑनलाइन एड्रेस दिया. अब ये जो साइट है, ये साइट हमें कहीं यूज करनी है, तो इसे कैसे यूज करेंगे उसके पहले एक और चीज एक्सप्लेन करते हैं. ये लेटेक्स का जब आपने ये देखा होगा, ये जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी, प्रेजेंटेशन की स्लाइड में आपने एक पैटर्न पर यदि नोट किया होगा, तो ये लेटेक्स देखिए कैसे दिख रहा है. ये इसका ट्रेडमार्क विजन है, विजुअल्स है. तो ये लेटेक्स कैसे आता है, ये अपने फोल्डर में देखते हैं. ये लेटेक्स के सामने स्लैश लगा दिया, LAT कैपिटल EX कैपिटल. अब इसको बिल्ड करो. इसको बिल्ड करने पर राइट, ये इसका ट्रेडमार्क जो स्टैंडर्ड सिंबल है. ये जो बुक है, प्रीमियर का बुक है, दिस इज द बुक. आपके लाइब्रेरी में आप सर्च कर सकते हैं, या मार्केट में यदि मिल जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी स्मूथली लेटेक्स पे काम करने के लिए, राइट. अच्छा, ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस यदि हमें कहीं साइट करना हो तो मैट्रिक्स में इसको साइट करते हैं. ये लिखा साइट LT, इसको हम इनिशियली लिखकर बताते हैं. साइट SITE साइट. तो ये साइट LT दिख रहा है, लेटेक्स ट्यूटोरियल
क्लिक कर दिए एंटर। तो जैसे इसे एंटर करेंगे तो ये वो मैट्रिक्स के सामने शो करेगा कि हमने ये रेफरेंस, ये फर्स्ट रेफरेंस यूज किया ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना। रिसर्च पेपर में काफ़ी यूजफुल कमांड होता है साइट। नाउ वी क्रिएट अनदर रेफरेंस बिब आइटम मंजूषा जोशी। ये भास्कर प्रतिष्ठान की फैकल्टी है। नागपुर यूनिवर्सिटी ने एक लेटेक्स सॉफ्टवेयर पर वर्कशॉप लिया था, तब ये मेन फैकल्टी थी, रिसोर्स पर्सन थी और काफ़ी कुछ सीखने मिला था। तो इनका जो उन्होंने उस समय कुछ शीट्स प्रोवाइड की थी, असाइनमेंट शीट्स, उनकी हेल्प भी हमें ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए लगी है। तो प्रॉपर क्रेडिट शुड गो टू मंजूषा जोशी मैम ऑल्सो। इन्होंने अपना लिंक दिया, वेबसाइट लिंक www.btrim.org। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। इसको बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने पे यस ये क्रिएट हो गया। सेकंड मंजूषा। अब देखिए यहाँ हमने ये कर्ली ब्रैकेट शो नहीं किया, अधूरा रहा, तो इसने प्रॉपर यहाँ नहीं बताया, यहाँ मिसिंग था कुछ। तैयार करो कर्ली ब्रैकेट और फिर मंजूषा। अब इसका इनिशियल देना है तो MJ दे देते हैं। बिल्ड यस, नाउ दिस इज कंप्लीट। इसको रेफर करते हैं कहीं पर, इसको साइट करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में ये ट्यूटोरियल का हेल्प हुआ था। फंक्शन की डेफिनेशन में यस, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। हम फिर से टाइप करते हैं साइट SITE। जो आप जो साइट क्रिएट करेंगे, आपने वहाँ तो बिब आइटम के साथ में इनिशियल लिखा है, साथ ही साथ वो बैकग्राउंड में साइट क्रिएट कर लेता है। तो आप यहीं से इसको एंटर कर दीजिए। एंटर किया और ये बिल्ड होने के बाद फंक्शन की डेफिनेशन के आगे टू दिखाना चाहिए उसमें। तो फंक्शन की डेफिनेशन के सामने यस। तो दिस इज अवर सेकेंड रेफरेंस। आई यूज सेकेंड रेफरेंस हेयर। ओके, तो इस तरह से ये बिब्लियोग्राफी कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो एक्चुअल ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, पर बस 1 मिनट और लेना चाहेंगे। लास्ट सेक्शन इज क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वो और इसे बिल्ड कर देते हैं। तो इसके लिए भी हम आपसे लाइव जुड़ेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस, दिस इज अवर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जैसा डॉक्यूमेंट हमने आपको इनिशियली दिखाया था, सेम वैसे डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने प्रॉपर वे से एंटर करते हुए जो भी कमांड्स है ये जनरेट किया है। शुरुआत में इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने सामने जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट रखिएगा और उसके हिसाब से क्या क्या कमांड होंगे, कैसे वो अपीयर होगा आउटपुट में। सो थैंक यू once again. I want to thank management of R.R. Lahoti Science College principal and Kalpana Pawar madam, IQAC coordinator, and also my guide. Thank you madam. This is my YouTube channel गणित दर्शन। यहाँ अभी तक के 29 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, जिसमें सेमेस्टर 1 नागपुर यूनिवर्सिटी और गोंडवाना यूनिवर्सिटी का पूरा पेपर 1 कंप्लीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यदि आप एक बार इसे विजिट करें और देखें कि आपके काम का कुछ इसमें से मिल सकता है क्या, तो हमें खुशी होगी। और यदि आपको कुछ वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, कमेंट्स होंगे, तो आप ज़रूर वहाँ कमेंट बॉक्स में उन्हें पुट कीजिए। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, उसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के भी रेगुलर बेसिस पे कंटेंट इस वीडियो चैनल पर डाले जाएंगे। गणित दर्शन यूट्यूब चैनल लिंक है, बट आप गणित दर्शन के नाम से भी यदि सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको ये मिल जाएगा। गणित का स्पेलिंग GANEET,
गणित दर्शन। सो थैंक्स टू ऑडियंस ऑल्सो, जिन्होंने इतना लंबा समय 1.5-2 घंटे लगभग होते आए हैं, आपने पेशेंसली सुना। लेकिन केवल सुनना काफ़ी नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा। शुरुआत में एक पेज का 1 A4 साइज के पेज का डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो शुरुआत में ये हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। एक बार यदि हमने ये टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो ये लाइफ लॉन्ग, ये जो नॉलेज आपने गेन किया, ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जय गणित, धन्यवाद। Thank you, Agrawal sir, for sharing your tremendous knowledge about the latex. I hope that all the participants will agree with me that this webinar will be the very useful for using the latex while writing the research papers. And I hope that all my dear friends, including students, because there were many requests from the students, research students especially, to me that organize an event in which we can learn latex easily. And I think the way sir explained the latex to us, this is very simple and easy way. Definitely each one of us will implement this knowledge in future. Thank you sir for enlightening us with the latex. Now moving towards the last part of this event, that is the vote of thanks. I request organizing secretary of this webinar, Mr. Kolekar, to propose the vote of thanks. Welcome, Mr. Kolekar. Good afternoon, all of you. I am here to express vote of thanks on behalf of Sri R.R. Lahoti Science College, Morshi, for this webinar, Learn Latex, Lead the Latest. I am sincerely thanking our Sri Shivaji Education Society's President, Sri Harshavardhanji Deshmukh, for his constant support and guidance to arrange such webinars. Mainly, I would like to thank our keynote speaker, Dr. Rishi Kumar Agarwal, for this wonderful lecture on latex. It will be very helpful for faculties and students in the research field. Then I would like to thank our college principal, Sri G.R. Tadas, for his very valuable guidance to arrange this webinar. Then I would like to thank our all participants for this such huge response and attending this webinar patiently. And last but not least, all the staff members of Lahoti Science College, thank you all for your help for arranging this webinar. And with consent of principal, I am declaring this webinar is successfully concluded. Thank you all. And there is one note for participants. The feedback link is provided on Telegram link. Please fill the feedback form. Your certificates will be issued within 3 days. Thank you. Stay home, stay safe.